children, today's session is superly important for all of you because we are going to unlock the secrets of scoring full marks for your short answer questions. Here in this session, I have taken the most important questions which have been frequently and repetitively asked from the biology section of the science paper, the class 10th CBSE. So here we are going to understand how to articulate the answer in a right way to get the full marks. अब इसको करने से पहले हम ये समझते हैं कि बच्चे मिस्टेक्स कहाँ कहाँ करते हैं. They either write too much for the 2 markers or they write too little for the 2 markers, so they end up losing marks. If you write too much, that means more than required, then also you lose marks. If you're writing not appropriate or less than required, then also you will end up losing marks. तो we'll understand the right technique. अब हम right technique समझते हैं कि हमें कैसे आंसर्स लिखने चाहिए. So tips for answer writing to score full marks. Here in this session, I have taken 2 marker questions from the biology section of class 10th CBSE. So here children, first of all, the very first thing one should do is read carefully. You need to read your question twice to understand the need of the question. कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, and try to know what the question is asking. Then the second thing you need to keep in your mind is to write your answer in points. Most of the times I have noticed in my physical classes also, where students appear for the cycle test or the mock test, they write the answers in paragraph, right? And they do not break the sentences and they end up losing marks. So if you are writing the answers in points, your teacher will be able to understand that what are you talking about, and you break the monotony of the answer. Next, use proper. Since here in this session, I'm going to target the biology. So use proper biology words. That means no vague terms, only use of keywords. राइट चिल्ड्रन, अगर आप कीवर्ड्स अच्छे से यूज करेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. बिकॉज जब हम कीवर्ड्स यूज करते हैं और उन कीवर्ड्स को हम अंडरलाइन कर देते हैं तो टीचर के लिए आपका आंसर रीड करना इजी हो जाता है. जब टीचर आपका आंसर इजीली रीड कर पाते हैं, क्विकली एफर्टलेस चेकिंग कर पाते हैं, यू एंड अप गेटिंग फुल मार्क्स. Add small label diagram if asked. So do not kill your energy in unnecessarily adding the diagrams in biology questions, right? If it is asked, then give the diagram. Because आपको जब एग्जाम करना है, एग्जाम में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं, you have to be very careful about managing time. So अगर आप 2 mark कर आंसर में जरूरत से ज्यादा एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट कर दोगे, यू विल एंड अप लूजिंग टाइम टू राइट योर होल एग्जाम एंड दिस वे यू मे सफर. सो आपको ध्यान रखना है कि आपके आंसर्स प्रिसाइज होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें प्रिसाइजली भी लिख देते हैं, कीवर्ड्स भी यूज कर देते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ बैड हैंड राइटिंग दे लूज मार्क्स. एंड समटाइम्स द चिल्ड्रन हैव एन हैबिट ऑफ राइटिंग वन सेंटेंस एंड देन कट इट, देन राइट द अनदर वन. सो दिस शोकेसेस द कंफ्यूजन इन देयर माइंड. तो जब आप बार बार लिखते हैं और उसको कट करते हैं और दोबारा से लिखते हैं, इट शोज योर माइंड इज नॉट क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट. अगर हम 2026 सीबीएसई की बात करें, आपका 50% पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड है. Competency means your rote learning will not help you. Your application of concept will help you. And वो application of concept कैसे होता है? It is only done with practice, practice, practice and more practice. अब practice आपको कैसे help कर रही है, पहले आप ये समझिए. Practice करने से आप experience gain करते हो. Just take an example of you and me. I am a teacher, you are a student. Right? You're learning for the very first time and I have been teaching since long. So what is the difference between you and me? That is just the experience. तो एक अच्छे स्टूडेंट को और उस स्टूडेंट को जो above average परफॉर्म करते हैं, टॉप स्कोरर्स होते हैं, what is the difference? The difference lies only in the practice. So more you repetitively practice, more you gain the marks.
अब बहुत सारे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आता है, हमने रीड किया, some students do eye reading, some students do finger reading, or they presume that they have understood the things and they will write whenever it comes in exam and whatever they ask, because उनको लग रहा है कि उन्हें क्वेश्चन समझ में आ गया है या वो क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। बट चिल्ड्रन, मार्क माई वर्ड्स, जो बच्चे घर से रिटन प्रैक्टिस करके जाते हैं एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु कीप ऑन वर्किंग ऑन देयर आंसर आर्टिकुलेशन स्किल्स, राइट, वो बच्चे बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं कंपैरेटिवली टू दो स्टूडेंट्स जो अच्छे से आंसर्स आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। अगर आप बायोलॉजिकली अपनी बॉडी को समझते हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है दैट आपका ब्रेन, आपके न्यूरॉन्स ट्रेन होते हैं। अब मैटर करता है कि आप उन्हें ट्रेन कैसे कर रहे हो। आर यू ट्रेनिंग योर न्यूरॉन्स विद रिस्पेक्ट टू ओनली विजुअलाइजेशन और यू आर जस्ट राइटिंग इट। तो जब आप राइट कर रहे हो, सो यू आर ट्रेनिंग योर न्यूरॉन्स टू आर्टिकुलेट द आंसर्स, टू फिगर आउट एंड टू गिव द आउटपुट वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग। तो आप जो इनपुट ले रहे हो उसका आउटपुट की जब तक प्रैक्टिस नहीं लगाओगे तब तक आपके क्वेश्चंस अच्छे से नहीं लिखे जाते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट एज एंड लर्निंग एज टू डू रिटन प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मैम वो रिटन प्रैक्टिस हम करें कैसे, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अब 1000 क्वेश्चंस आर एंडलेस और सब्जेक्ट्स भी हैं आपके पास सारे। सो द बेस्ट वे to do home practice, home written practice, just to prepare a topic, pick up some questions from the topic and start writing the answer with respect to keywords. तो आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, कीवर्ड्स डाल सकते हो, शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस बना सकते हो, so that will absolutely help you to retain the keywords and the phrases which basically help you to fetch full marks. अब आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस व्हिच बॉदर्स। इस पूरे सेशन में मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम हुआ है। दे न्यू द आंसर वेरी वेल बट दे डोंट नो हाउ टू आर्टिकुलेट इट प्रिसाइजली। तो वहां जहां वो स्ट्रगल कर रहे थे, एंड ये सारे ही क्वेश्चंस मल्टीपल स्कूल्स के एग्जाम्स के हैंडपिक्ड हैं और इसमें आपके क्वेश्चंस 2026 सैंपल पेपर जो आपका लॉन्च हुआ है वो 2026 बोर्ड एग्जाम, उसमें से भी हैंडपिक्ड है। इस पूरे सेशन में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, दोज ऑल क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन, बिकॉज उसमें मेजरली थ्योरी रहता है, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। उसमें क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके लिए आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बट यू डोंट नो कि आपको कितना प्रिसाइजली लिखना है, कितना क्लियर करके लिखना है। सो हियर इन द होल सेशन stay with me till the end to learn, and I will assure you कि by the time you reach to the end of the session you will be able to understand कि हमें आंसर राइटिंग के टाइम पे हमें कैसी आइडियोलॉजी रखनी है, हमें अपनी आंसर राइटिंग प्रिसाइजली कैसे रखनी है, राइट। और इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सारे ही क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट किए गए हैं इन वन और द अदर फॉर्म। द क्वेश्चन वाज सेम बट द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन हैज चेंज्ड। सो दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू फॉर योर अपकमिंग प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड एग्जाम चिल्ड्रन। सो लेट्स स्टार्ट। Now here I have given you a question. This question I have handpicked from section D. 2026 में paper pattern change हो गया है. You're going to get biology, chemistry and physics separately. But this I have taken from the last year paper, जिसमें आपको give reason करके हमेशा question आता है. Chemistry में भी आता है, right? And biology में भी आता है. So इसमें आपको out of 6, 5 attempt करने थे. But here, since I am teaching you how to write the answer, so I will be taking all 6 parts of the question. So first part is saying majority of the carbon dioxide carried by plasma but not oxygen. अब give reason, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको समझना होगा कि प्लाज्मा
अब आपको बेसिक्स पे जाना होगा। जब भी हम रीजन वाला क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें हमारे टीचर्स ने क्या बेसिक पढ़ाए हैं। जब आपने कॉन्सेप्ट लर्न किया होगा, आपने ब्लड का कॉन्सेप्ट लर्न किया होगा, तब आपने समझा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? अब the second part is saying I will take the answers, right? Let us read the whole question, then I will take one part each. ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल। अब ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल, इसमें आप इसकी नेसेसिटी भी बता रहे हैं और इसमें आप इसकी इविलनेस भी बता रहे हैं। मीन्स इट इज नेसेसरी ऑल्सो एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट अ ट्रबल फॉर यू एज वेल। एल्वेलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। अब सोचना पड़ेगा, इसके लिए बच्चे को अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि एल्वेलाइज क्या होते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एल्वेलाई एंड व्हाई द ब्लड कैपिलरीज आर सराउंडिंग इट, राइट? तो हमें ये आंसर करना है। इसके फंक्शन से ही आप कनेक्ट कर पाएंगे कि ब्लड कैपिलरीज से क्या सर। तो जब भी वाई ब्लड कैपिलरीज आर अराउंड एल्वुलर, जब भी आपको रीजन वाला क्वेश्चन आएगा वो हमेशा बेस से आएगा, रूट कॉन्सेप्ट से आएगा। वेन्स का लो प्रेशर क्यों होता है, इसके लिए भी आपको क्या समझना जरूरी है, व्हाट इज द प्राइमरी जॉब ऑफ वेन्स, वेन्स क्या कर रहे हैं। जब आपको वेन्स का फंक्शन पता होगा तभी आप ये पता कर पाएंगे कि वेन्स का लो प्रेशर क्यों होता है। नेक्स्ट, ऑल्दो प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन बट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज नॉट एविडेंट। प्लांट्स रेस्पिरेशन तो परफॉर्म करते हैं, वी नो दैट कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं और प्लांट्स रेस्पिरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। सो दीज बोथ आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस व्हिच आर हैपनिंग इन द प्लांट्स। बट वी नो दैट एट द सेम टाइम कि जो ऑक्सीजन होता है दैट इज डिफ्यूज्ड आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड इन। अब कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज एविडेंट क्यों नहीं होता, एविडेंट का क्या मतलब है, इसके लिए सब बच्चों को पता होना चाहिए। एविडेंट का मतलब है विजिबल क्यों नहीं होता, व्हाई द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज नॉट विजिबल। नाउ द लास्ट, एयर पैसेज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर इनटू इट। तो एयर पैसेज इज नोन एज विंड पाइप, दैट इज नोन एज ट्रकिया। ये कोलैप्स क्यों नहीं करता, तो अगर कोलैप्स करने का मतलब है वो एकदम से बैठ क्यों नहीं जाता, तो दैट मीन्स उसके पास कुछ ऐसा है जो उसको सपोर्ट करता है इवन व्हेन द एयर इज नॉट प्रेजेंट इनटू इट। तो सारे क्वेश्चंस थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अब इनको आंसर कैसे करना है, मोस्टली बच्चों को पता होता है कि ट्रांसपिरेशन की क्या रोल है। एल्वेलाई एयर सैक्स होते हैं विच आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। वेन्स क्या करती हैं, वेन्स brings the blood to the heart, right? Plants respiration करते हैं, so that means their food get oxidized to produce ATP into the plants. Air passage को हम ट्रकिया बोलते हैं, तो उन्होंने ट्रकिया नहीं दिया, उन्होंने विंड पाइप नहीं दिया, उन्होंने उसको क्या बोल दिया, एयर पैसेज। तो देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन बायोलॉजी टू प्ले विद वर्ड्स, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, तो आपको वो सारे सिनोनिम्स पे अच्छे से वर्क करना आना चाहिए, बिकॉज दे मे फ्रेम द क्वेश्चन इन एनी वे। अब हम वन बाय वन इनकी नीड समझेंगे। तो आपका इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट था दैट मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय प्लाज्मा बट नॉट ऑक्सीजन। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, क्यों, बिकॉज वी कॉन्टिन्यूसली रेस्पायर टू प्रोड्यूस एटीपीज एनर्जी। अब कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर वेस्ट होता है, yes we exhale it out, but at the same time carbon dioxide is more soluble in plasma. तो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्यूबिलिटी प्लाज्मा में ज्यादा होती है। तो आपने प्रिसाइजली आंसर किया कि मेजॉरिटी कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों कैरी हो रहा है, क्योंकि उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज मोस्टली क्या, वेयर एज oxygen is mostly carried by hemoglobin to form oxyhemoglobin complex. अब hemoglobin की जो affinity होती है means it shows attraction towards oxygen. तो ऑक्सीजन जाके किससे बाइंड हो जा रहा है, हीमोग्लोबिन से, और कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्यूबिलिटी किसमें ज्यादा है, प्लाज्मा में ज्यादा है। इसकी वजह से दिस इज द रीजन दैट मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड आउट बाय प्लाज्मा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस आंसर में कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है,
हमने कुछ भी, यस हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक सेल्यूलर वेस्ट है, यस हमें पता है कि हम एक्सेल करते हैं, बट इन सब बातों को लिखने का कोई फन नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को जो कुछ पता होता है वो लिखते चले जाते हैं, उनको लगता है कि लेंदी आंसर राइटिंग से टीचर विल गिव यू मार्क्स। बट चिल्ड्रन, आई वांट टू बस्ट आउट दिस मिथ, लेंदी आंसर राइटिंग से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे क्लियर एंड कंसाइज आंसर राइटिंग से। सो आपके क्वेश्चन को हमने, दिस इज ईच फॉर 1 मार्कर, तो वी कैन नॉट राइट टू मच। अब उसके दो नुकसान है, टीचर मार्क्स भी नहीं दे रहा, दूसरा वी आर किलिंग आवर टाइम वाइल आंसर राइटिंग। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल। ये क्वेश्चन 2 मार्क में भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में भी पूछा गया है। 2 मार्कर के लिए मैंने अपना एक रील बनाया था एंड आई हैव अ पोस्ट ऑल्सो विच आई विल बी शेयरिंग लिंक हेयर, जो आप ऊपर स्क्रीन पर देख पाएंगे। सो वो लिंक जब आप देखेंगे आप उसको क्लिक करके 2 मार्कर के लिए सीख सकते हैं, बट यहाँ पे हम 1 मार्कर के लिए काम कर रहे हैं। सो विल बी राइटिंग प्रिसाइजली अब वाटर लॉस इज देयर, सो वो एक इविल है, बट दैट लॉस इज एसेंशियल। अब वो लॉस जरूरी क्यों है, वो लॉस एसेंशियल और इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब तक वाटर लॉस नहीं होगा, एक टर्गर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, एंड द जाइलम इज नॉट गोइंग टू पुल अप द जाइलम जैप, which is xylem zap क्या है बच्चा, which is a combination of water and minerals which are present in the soils, राइट। सो सॉइल में जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज वाटर सोल्यूबल। अब वाटर लॉस हो रहा है, वाटर लॉस की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन हमें 1 मार्क में लिखना है। अगर ये 2 मार्क में आ जाएगा तो हम जाइलम जैप की बात करेंगे, हम रूट प्रेशर की बात करेंगे, हम कोहेशन की बात करेंगे, हम अडहेशन की बात करेंगे। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 मार्कर के लिए, तो हम सिंपली 1 लाइन में इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे कि यस ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस हो रहा है, जो उसकी इविलनेस बता रहा है, बिकॉज दिस वाटर लॉस इज गोइंग टू हार्म द डेजर्ट प्लांट्स, बिकॉज डेजर्ट प्लांट में जरूरत से ज्यादा वाटर लॉस हो गया, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन सच एडवर्स कंडीशंस। अब वो वाटर लॉस जरूरी क्यों है, जब तक वाटर लॉस नहीं होगा देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ द टू रीजन, द रूट एंड द शूट्स। और जब तक डिफरेंस इन प्रेशर नहीं होगा, द रूट जाइलम एंड द शूट्स जाइलम इज नॉट गोइंग टू अपलिफ्ट द न्यूट्रिएंट, सो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट फेल हो जाएगा, दिस इज अ कीवर्ड। कूलिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन इज इवेपोरेशन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीफ। सिंस ये 1 मार्कर था तो हमने ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन भी नहीं दिया, हमने सिर्फ उसको प्रिसाइजली फिनिश किया। एंड मेंटेनिंग वाटर, राइट, इट इज गोइंग टू मेंटेन द वाटर साइकिल। अब जब ये वाटर साइकिल मेंटेन करेगा, वाटर साइकिल कैसे मेंटेन हो रही है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से इवेपोरेशन हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, एंड अगेन द वाटर इज बीइंग गिवन टू द अर्थ ऑन इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। तो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, कूलिंग एंड मेंटेनिंग वाटर साइकिल इज टॉकिंग अबाउट द नेसेसिटी, right children, and you have given just one word that water loss is talking about its evilness। तो 1 मार्कर के लिए दिस इज द परफेक्टली रिटन आंसर। क्यों लिखना है ज्यादा, यही आजकल बच्चों को सीखना है। एमसीक्यू हम सीख रहे हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग इट, राइट, बट एसएक्यू पे बहुत कम बच्चे फोकस करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि चलो एग्जाम में जाके लिख लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आपको हर तरीके से आंसर आर्टिकुलेशन आना चाहिए, आपको प्रिसाइज करना आना चाहिए, आपको लेंदी करना आना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स एंड द नीड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ चिल्ड्रन, द थर्ड पार्ट इज alveoli सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। अब हमें पता है कि alveoli एयर सैक्स होते हैं, बट ये 1 मार्क का, इसको बता के क्या करेंगे, alveoli आर अटैच्ड एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स, इसे भी बता के क्या करेंगे, 1 मार्कर है। अब वो सराउंड क्यों करते हैं, दर सराउंड, व्हाई द ब्लड कैपिलरीज आर अराउंड alveoli, ऐसा क्यों होता है, why it ensures the efficient exchange of gases। अब वो गैसेस कौन सी हमने बता दिया, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। सो इट इज अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर एंड द ब्लड।
अगेन द टू कीवर्ड्स। अब वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से कहाँ हो रहा है, वो एयर से ब्लड में हो रहा है। अब ये चीज इसको परफेक्टली आंसर करता है कि एल्वेलाइज ब्लड कैपिलरीज से क्यों सराउंड है, क्योंकि एल्वेलाई एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम अब वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, आपने साइट ऑफ एक्सचेंज भी बता दिया, दैट इज एयर एंड ब्लड बाय डिफ्यूजन। सो दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट चिल्ड्रन। कितना लिखना है, कितना प्रिसाइज लिखना है, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट थ्री पार्ट्स। द नेक्स्ट पार्ट इज वेन्स हैव लो प्रेशर। वेन का लो प्रेशर क्यों होता है, हमें वेन का बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए। वेन क्या कर रहा है, वेन ब्लड कैरी कर रहा है बैक टू द हार्ट, which is very important, right, from different parts of the body. By the time जब तक ब्लड वेन्स तक पहुंचता है, उसका सारा प्रेशर लूज हो चुका होता है, which is generated by the heart. तो जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो एक पुश के साथ भेजता है। अब वो पुश क्या करता है, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, आर्टरीज का ल्यूमेन नैरो होता है, कैपिलरीज एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। सो ऑल टुगेदर बाय द टाइम the blood reaches the veins, it loses all the pressure and it has to take the blood back to the heart. And heart cannot hold the blood at very high pressure because it is a smaller muscular organ. Right, children? So here we have understood कि veins में pressure low क्यों होता है. Now moving towards the next one. Although plants perform respiration, but carbon dioxide release is not evident. अब वो कह रहे हैं कि भाई प्लांट तो रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट्स अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, प्लांट्स में रेस्पिरेशन हो रहा है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वो तो एविडेंट ही नहीं है, वो दिख ही नहीं रहा। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज्ड इन द रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए द टू थिंग्स, हाउ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन वर्क इन कोऑर्डिनेशन। अब इसके ऊपर तो आप पूरा एक एस्से लिख दो, वो भी कम है, बट हमें पूरा एस्से नहीं लिखना, हमें सिर्फ वन मार्कर क्वेश्चन को लिखना है। अब वो वन मार्कर क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको उसकी नीड समझनी है। अब रेस्पिरेशन के टाइम पे जितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारा का सारा इमीडिएटली कौन यूज अप कर लेता है, फोटोसिंथेसिस। बिकॉज फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चा, CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, right? So that is going to give you C6H12O6 plus O2, right? सो अब ये आपका एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ यूटिलाइज हो रही है, वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो रही है। तो बहुत ज्यादा लिखने की नीड नहीं है, टू द पॉइंट लिखो, राइट? सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन यूज्ड अप इमीडिएटली इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे। सो इसीलिए उसका जो रिलीज है वो एविडेंट नहीं है। बहुत सारा नहीं लिखना है इसमें। बच्चे क्या करेंगे, दे स्टार्ट कुकिंग अप स्टोरीज, दे स्टार्ट यूजिंग अ वेग वर्ड्स, द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। इसमें रिएक्शन की भी नीड नहीं है। अगर ये 2 मार्कर में आ जाता है तब आप सपोर्टिव दोनों रिएक्शन दे सकते हैं, या ये क्वेश्चन 3 मार्क। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े से रिस्की भी होते हैं क्योंकि ये 1 मार्कर में, 2 मार्कर में, 3 मार्कर में, डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ द एग्जामिनर दे विल आस्क यू। अब उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आप कितने मार्क्स के लिए करें। सिंस यहाँ पे हम 1 मार्कर के लिए कर रहे हैं तो हम प्रिसाइजली लिखेंगे। अगर मैं 3 मार्कर के लिए करूंगी तो मैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों का रिएक्शन साथ में ऐड कर दूंगी, राइट? और उसमें कनेक्शन बता दूंगी कि जो प्लांट है उसमें हम एक वर्ड और ऐड कर देंगे, हम एक पॉइंट की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे इज मच मोर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से जितना भी आपका CO2 प्रोड्यूस होता है वो क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कंज्यूम हो जाता है। सो दैट इज वाई उसका रिलीज एविडेंट नहीं है। ये सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ये कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बट कई बार बच्चों को कॉन्सेप्ट आने के बावजूद भी वो क्वेश्चन को, नीड को ना समझते हुए वो ओवर राइटिंग कर जाते हैं। वो ओवर राइटिंग नहीं करनी। एयर पैसेज नॉट कोलैप्स, राइट?
व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। ऐसा क्यों है? अब वो एयर पैसेज क्या है, बच्चे को पता है कि वो एयर पैसेज विंड पाइप है, या हम उसको ट्रकिया बोलते हैं। अब वो कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा, सिर्फ इतना पूछा गया और 1 मार्कर में पूछा गया। तो एयर पैसेज आप ब्रैकेट में लिख दो ट्रकिया, जो इसका आप कीवर्ड्स भी यूज कर रहे हो, एंड सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स, और हम उसको क्या बोलते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, राइट। सो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उसको सपोर्ट करता है, विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फर्दर कोलैप्स। सो दिस इज हाउ, इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है, बिकॉज जितना प्रिसाइज रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे, उतना आप अपना एग्जाम में टाइम सेव कर पाएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू किल योर टाइम इन ओवर राइटिंग, एंड यू विल गेट ऑल्सो गेट फुल मार्क्स, राइट चिल्ड्रन। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। अब इसमें भी उन्होंने एक हैवी सा वर्ड यूज कर लिया है, pertaining to endocrine system, what will you interpret if? Pertaining means if you connect the two pointers, the two parts which is given। ये मेरे फिजिकल स्टूडेंट के पेपर में से क्वेश्चन लिया गया है, she got confused, राइट, कि मैम पर्टेनिंग क्या होता है। पर्टेनिंग का मतलब होता है कि समटाइम, अच्छा ठीक है, हमें नहीं समझ में आ रहा या हमने वो वर्ड पहले नहीं सुना, रीड द क्वेश्चन 2 टाइम्स, उसको 2 बार रीड तो करो। जरूरी नहीं है ना कि हर चीज का डिक्शनरी मीनिंग फाइंड आउट करें, तो आप क्वेश्चन रीड करके उसका मीनिंग आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। पर्टेनिंग टू एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स इफ यू कनेक्ट द टू बिलो पार्ट्स टू द एंडोक्राइन सिस्टम, आप क्या इंटरप्रेट करते हो, राइट। इफ you observe swollen neck in people living in the hills। अब swollen neck सबको पता है कि that is due to goiter, ये goiter होता है। तो सबसे पहले आप इसका प्रॉब्लम बता देंगे, ये 2 मार्कर में है, राइट चिल्ड्रन, 1 मार्क फॉर ईच पॉइंट। सो अब मैंने आपको इसको पॉइंटर्स क्रिएट कर दिया, शॉर्ट पॉइंट्स। अब दिस इज गोइटर, अब सोलन नेक क्या है, एक गोइटर है, इस डिसीज को क्या बोलते हैं, गोइटर। अब आप बता रहे हैं, आपको कनेक्ट करना है कि ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। अब आयोडीन की वजह से क्यों हो रही है, क्योंकि बचपन से तो हमें यही बताया गया है, इट्स बेसिकली the thyroxine hormone which is responsible to cause the goiter। अब थायरॉक्सिन हार्मोन कब काम नहीं करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस के लिए, उसके बनने के लिए आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज एसेंशियल। सो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड। अब लैक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन causes the thyroid to enlarge। अब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है दैट इज देयर इन द नेक, वो एनलार्ज हो जाएगा, एंड दैट लीड टू स्वोलन नेक। तो आपने इसमें कीवर्ड्स क्या यूज किया, आपने गोइटर बताया, दैट इज अ कीवर्ड, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन बताया, दैट इज अ कीवर्ड, राइट। आपने थायरॉक्सिन हार्मोन का यूज किया, आपने एसोसिएटेड ग्लैंड भी बताया, राइट, और आपने साथ में कनेक्ट कर दिया कि इसके डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है। So if you use all the keywords, so teacher has no point, no reason to deduct your marks. So it is very important and it is very essential to understand कि आप अपने आंसर को केटर कैसे करेंगे, राइट। इस बार आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स भी अच्छे से देखी जाएंगी। प्री बोर्ड्स के लिए जब आप जाएंगे तो प्री बोर्ड्स में कंपैरेटिवली टू बोर्ड चेकिंग बहुत टफ होती है, पेपर भी टफ सेट होता है हमेशा। बोर्ड्स में पेपर एक अप्रोप्रिएट लेवल से सेट होता है सभी बच्चों को देखते हुए, बट स्कूल टू स्कूल प्री बोर्ड्स वेरी करते हैं, प्री बोर्ड का लेवल टफ किया जाता है इन ऑर्डर टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ द स्टूडेंट्स टू गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स एंड वर्क हार्ड टू अचीव योर बेस्ट। सो आप इन सब चीजों को जब आप ऐसे आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे, कीवर्ड्स के साथ कर लो, इतना सारा नहीं लिख पा रहे हो कीवर्ड्स और लिख भी पा रहे हो, हैंड राइटिंग फास्ट होगी, जब आप लिखोगे तो आपकी स्पीड ऑफ राइटिंग भी इंक्रीज होती है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी वेल व्हाइल राइटिंग द एग्जाम्स। अब ओवर सिक्रीशन, नेक्स्ट पार्ट क्या है, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब थ्रू आउट लाइफ अपनी बात कर लो, यू ऑल आर मिड टीन्स, राइट। 10th का बच्चा हमेशा 14-15 ईयर्स का होता है, तो मिड टीन्स में चल रहा होता है, इस टाइम पे आपकी हाइट भी शूट करिए, सब करिए। क्या मैम की हाइट अभी शूट करेगी, नो, अब मेरी हाइट शूट नहीं करेगी। तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो ओवरली सिक्रीट अगर हो रहा है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अब ये क्या होगा, अगर जरूरत से ज्यादा सिक्रीट हो गया तो क्या हो जाएगा, अब
सिक्रीशन होनी चाहिए ड्यूरिंग प्यूबर्टी, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओवर सिक्रीट हो गया तो क्या हो जाएगा। सो दो प्रॉब्लम होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, तो आपको एसोसिएटेड ग्लैंड बताना है, कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है आपको ये बताना है, और उससे आप क्या इंटरप्रेट करोगे। अब इंटरप्रिटेशन पूछा है, रीजन नहीं पूछा। अगर ओवरली सिक्रीट हो जाएगा तो एक डिसीज हो जाती है विच इज नोन एज गिगैंटिज्म। सो गिगैंटिज्म क्या होता है बच्चा, gigantism means the person is very very tall, मतलब 7 फीट जाएगा इस तरह से अबव। सो दैट मीन्स कि उसके चाइल्डहुड में पिट्यूटरी ग्लैंड ने जरूरत से ज्यादा काम कर लिया, और उस वजह से उनका जो ग्रोथ हॉर्मोन्स है वो ओवरली सिक्रीट हो गया। सो विच ड्यू टू विच द चाइल्ड हैज ग्रोन एबनॉर्मली टॉल। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन हेल्प करता है इन इलोंगेशन ऑफ बोन्स। अब उसके बोन्स ही जरूरत से ज्यादा इलोंगेट हो गए, तो दैट विल मेक द पर्सन एबनॉर्मली टॉलर। राइट चिल्ड्रन, तो आपका इसमें कीवर्ड क्या है, गिगैंटिज्म है, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब वो कौन सा ग्लैंड कर रहा है आपने वो भी बता दिया। सो व्हाट एल्स अ टीचर नीड इफ यू आर यूजिंग प्रिसाइज एंड कीवर्ड्स, सो दैट इज श्योरली गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम्स। राइट चिल्ड्रन, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फीडबैक मैकेनिज्म। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, द वेरी लास्ट टॉपिक। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ द हार्मोन इज रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का क्या मतलब है कि कब कौन सा हार्मोन रिलीज होना है और कितना रिलीज करना है बॉडी ने, उसके बारे में बोला जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये वाला क्वेश्चन आप 5 मार्क में भी क्रिएट कर सकते हो बाय गिविंग मल्टीपल एग्जांपल, ये 3 मार्कर्स में भी आ सकता है। और आपका ये क्वेश्चन कितने में पूछा गया, 2 मार्कर में। सो यू हैव टू कट डाउन योर इंफॉर्मेशन, यू हैव टू मेक इट प्रिसाइज। मीन्स आपको 2 मार्कर क्वेश्चन ये सिखाते हैं जितना जरूरी उतना बात करना चाहिए, राइट, ओवर एग्जैजरेट नहीं करना। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन फीडबैक मैकेनिज्म, एक्सप्लेन करो। अब एक्सप्लेन वर्ड सुनते ही बच्चों को लगता है कि बट वी हैव टू राइट ऑल द डिटेल, बट नो चिल्ड्रन, हमें बहुत कुछ नहीं लिखना, बिकॉज यहाँ पे भी तो ध्यान देंगे, दिस इज जस्ट 2 मार्क्स, राइट, ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड व्हाट यू हैव टू टेल, टू रेगुलेट द एक्शन ऑफ हार्मोन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। अब उसने ये भी बोल दिया कि भाई एक एग्जांपल दो, एक से ज्यादा नहीं देना, राइट। तो आप बहुत सारे ग्लैंड के एग्जाम्पल ले सकते हो, आप पिट्यूटरी ग्लैंड का ले सकते हो, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन रिलीज कर रहा है उसका ले सकते हो, बट यहाँ पे मैंने जो लिया है वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उसका एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले हमें इसे एक्सप्लेन करेंगे, तो मैंने 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि 2 मार्कर है। सो 1 मार्क हो गया आपका एक्सप्लेनेशन का और 1 मार्क हो गया आपका एग्जाम्पल का। सो 1 मार्क के लिए हमने 2 लाइन्स लिखी है, द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन इज हार्मफुल। बहुत प्रिसाइज करके लिखती है कि बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए हार्मोन बॉडी में और बहुत डेफिशिएंट भी नहीं चाहिए। सो दिस सिक्रीशन मस्ट बी रेगुलेटेड, तो इनका जो सिक्रीशन है वो रेगुलेट होना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये बता रहे हैं। अब जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है किसको, टाइमिंग को और अमाउंट को। अमाउंट को कंट्रोल करने का मतलब है कि इट डज नॉट लेट, फीडबैक मैकेनिज्म इज बेसिकली हेल्पिंग द ग्लैंड्स to release the hormones in appropriate amounts. If it is increased, then it is harmful. If it is released in decreased quantity, then also it is harmful. So ये हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल हमने लिया है, द ब्लड शुगर राइजेस। अब ब्लड शुगर राइज करेगा तो पैनक्रियास क्या करेंगे, दे स्टार्ट रिलीजिंग मोर इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन का क्या काम होता है, टू रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। तो वो सारा का सारा शुगर लेवल रेगुलेट हो जाएगा। एज शुगर लेवल फॉल्स टू नॉर्मल, अब वो क्या हो रहा है, शुगर लेवल वापस से नॉर्मल हो रहा है। सो इंसुलिन रिडक्शन, इंसुलिन सिक्रीशन अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, राइट। जब वो राइज कर रहा है तो इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसको सप्रेस करने के लिए, राइट। और जब वो नॉर्मल हो रहा है तो इंसुलिन पैनक्रियाज अपने आप रिड्यूस कर देंगे। तो आर यू इंस्ट्रक्टिंग योर ऑर्गन्स, आर यू इंस्ट्रक्टिंग योर ग्लैंड्स टू डू सो, नो। सो दिस इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, सो दैट इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म, विच सेज दैट ऑन टाइम
ग्लैंड्स को फीडबैक मिल रहा है कि किस टाइम रिलीज करना है और कितने अमाउंट में रिलीज करना है. से सपोज कि एक पेशेंट है, उसका ब्लड शुगर लेवल राइज हो गया, उसके पैनक्रियाज तो सोते रह गए, उन्होंने रिलीज ही नहीं किया. सो दिस इज what is known, what is the relevance, importance or significance of your feedback mechanism. It is basically there to control the timing and the amount of hormone release. Right children? Now moving ahead. अब आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन समझते हैं. This question talks about unlike animals, right? Plants do not have any excretory products as they do not eat food. Comment upon the statement with justification. अब ये क्वेश्चन जो पिक किया गया है, दिस क्वेश्चन हैज बीन पिक्ड फ्रॉम 2025, राइट, सैंपल पेपर ऑफ बोर्ड फॉर 2026 एग्जाम. अब ये रिलीज हो गया है, सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है ये, और ये किस ईयर के लिए? दिस इज फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 2026. So unlike animals, plants do not have any excretory products as they do not eat food. अब comment upon with the space statement with justification. अभी तक जैसे पहले क्वेश्चंस बनते थे वो नॉर्मल क्वेश्चंस बनते थे कि प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूस करते हैं, कब प्रोड्यूस करते हैं, क्यों प्रोड्यूस करते हैं, बट उन्होंने अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है. क्वेश्चन का बताया गया कि अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स के जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स नहीं होते बिकॉज वो फूड नहीं खाते. क्या ये बात सही है कि इफ दे आर नॉट ईटिंग लाइक अस सो दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग वेस्ट? नो, इट्स नॉट राइट चिल्ड्रन. तो हम सबसे पहले तो ये क्लियर करेंगे कि जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है. तो हमने यहाँ पे क्या बोला? प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स. प्लांट्स कर रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस, दे आर प्रोड्यूसिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स व्हेन ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म. अब जिन बच्चों को फिर से कंफ्यूजन है, मैं फिर से बता दूं कि मेटाबॉलिज्म, these are the metabolic photosynthesis and your respiration, right? These are the metabolic processes which are taking place. So photosynthesis और respiration के टाइम पे आपका क्या होता है? प्लांट के लिए क्या है? प्लांट इज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन. अब प्लांट के पास ऑक्सीजन तो प्लांट को यूज करनी नहीं, थोड़ी बहुत रेस्पिरेशन के लिए करनी है, बट इतनी नहीं करनी. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग डे इज मच मच हायर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. सो ऑक्सीजन का क्वांटिटी इज ऑलवेज मच मच मोर ड्यूरिंग डे टाइम एज कंपेयर टू CO2. अब रेस्पिरेशन करने के लिए यस प्लांट्स ने ऑक्सीजन यूज कर लिया, बट उसके बाद भी प्लांट्स के पास बहुत सारा ऑक्सीजन बच जाता है. अब वो बहुत सारा ऑक्सीजन तो उसके लिए वेस्ट है, तो जो मुझे नहीं चाहिए वो मेरे लिए वेस्ट है. Similarly, जो excess oxygen, the leftover oxygen, what is not required by me is waste for me, right? Even though they do not eat food like animals. अब वो मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो वो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके टाइम पर. अब वो वेस्ट क्या है? आपने ये भी मेंशन किया कि कौन सा वेस्ट, एग्जांपल देना बहुत जरूरी है. ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस वाटर है जो लूज हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, रेजिन्स एंड गम्स है, दैट इज ऑल्सो रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. वाटर किससे हो रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपने प्रोसेसेस मेंशन कर दिया क्योंकि उसने जस्टिफिकेशन मांगा है ना. तो जस्टिफिकेशन में पहले आपने बताया कि मेटाबॉलिज्म के टाइम पे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं. सेकंड पॉइंट में आप बता रहे हैं कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं. फिर आप उसी के कंटिन्यूएशन में बता रहे हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव कैसे हो रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन एंड CO2 रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन, राइट? Water is removed by transpiration, and raisins and gums are stored in the old leaves and bark, which when the old leaves and bark shed off or falls off, it also, the plants also get rid of their excretory products. So be precise. बहुत कुछ नहीं लिखना, बट आंसर की नीड को समझते हुए लिखना. आप समझ रहे हो? सब कुछ नहीं डाल, सब कुछ तो पता है, बट कितना आंसर को फीड करना है, क्वेश्चन को फीड करना है, ये आपको जरूर देखना है. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन राइटिंग आंसर्स एंड अंडरस्टैंडिंग. और जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि हाँ दिस इज द क्वेश्चन, मुझे इतना ही देना है. बट दिस थिंग ओनली कम विद प्रैक्टिस. ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी. आप सोचोगे कि मैं उसी टाइम कर लूंगा या कर लूंगी, देन इट विल नॉट हेल्प यू. How many chambers are there in the heart of the following organisms? So first part is question का है. This is also for 2 mark, right? First part कह रहा है कि कितने chambers होंगे.
How is mixing of oxygenated and deoxygenated blood prevented in their body? अब क्या हो रहा है, there are two organisms. In first part they're talking about fishes and in second part they're talking about humans, right? अगर हम fishes की बात करते हैं तो उनके chambers कितने होते हैं? Two chambers होते हैं, one atrium and one ventricle. But fishes के साथ ना mixing का कोई problem नहीं होता. क्यों? क्योंकि fishes क्या करती हैं? Fishes breathe करती हैं through gills. जब वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं तो वो दे आर यूजिंग डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व है फिशेस उसको यूज कर रहे हैं. सो ब्लड फ्लोज ओनली वंस, बल्कि ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है बट फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, बिकॉज जो ब्लड है वो सिर्फ वन टाइम फ्लो करके जाता है और उसमें उसकी नीड भी पूरी हो जाती है. गिल से पास करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा क्योंकि उसने गिल से ऑक्सीजन ले लिया सारा का सारा, सारे ऑर्गन्स में पहुंचेगा, फिर से घूम के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका गिल से पास कर जाएगा. तो सारा का सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? वन साइकिल में ही हो रहा है. इसीलिए हमने इसमें वर्ड यूज कर लिया सिंगल सर्कुलेशन है, कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन. तो कहीं पे भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं. ठीक है, हमने चेंबर्स बताए. अब मिक्सिंग कैसे प्रिवेंट हो रही है? सबसे पहले तो हमने बता दिया कि इनके साथ मिक्सिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. क्यों? क्योंकि ये सिंगल सर्कुलेशन फॉलो करते हैं, इनको गिल्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो वो एक ही बार में केटर हो जाता है. अब ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं. वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म and our energy needs are much higher. So our heart is having 4 chambers, right? 2 arteries and 2 ventricles. और इसको हम ऑरिकल्स भी बोलते हैं आर्ट्रियाज को. अब मिक्सिंग का तो बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि एनर्जी नीड्स बहुत हाई है. अब एनर्जी नीड्स की वजह से आर ऑर्गन्स, आर ईच बॉडी सेल रिक्वायर ऑक्सीजन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. अब उसके लिए मिक्सिंग का तो प्रॉब्लम है. अगर मिक्स होता जाएगा ब्लड तो we will not be able to get the enough oxygen. तो मिक्सिंग को तो प्रिवेंट करना है. अब वो कैसे प्रिवेंट किया जाता है? 4 चेंबर से प्रिवेंट किया जाता है. Oxygenated and deoxygenated blood are completely separated by the partition of the chambers and which ensures the double circulation. अब डबल सर्कुलेशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं, दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग अप in my ahead videos. So here children, जब मैं डबल सर्कुलेशन की बात कर रही हूँ तो डबल सर्कुलेशन का मतलब है जैसे कि ये लंग्स है, राइट? वी हैव हार्ट एंड द बॉडी ऑर्गन्स, राइट? अब क्या होता है, लंग्स और बॉडी ऑर्गन्स डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते. हार्ट इज अ मीडिएटर बिटवीन द टू. सो अब होगा क्या कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में जाएगा और लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड करके वापस से हार्ट में भेजेंगे. हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में भेजेगा, बॉडी ऑर्गन्स उसको डीऑक्सीजनेट करके वापस हार्ट में भेज रहे हैं. एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द हार्ट टू पंप द ब्लड टू द लंग्स टू गेट इट ऑक्सीजनेटेड. तो हो क्या रहा है, द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल. एक कंप्लीट साइकिल कौन सा है? हार्ट टू लंग्स वाला, जिसको हम पल्मनरी बोलते हैं, और एक है हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट. तो आप देख रहे हैं कि एक बार हार्ट लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, एक साइकिल ये हो गया. जो लंग्स है उसको हम पल्मनरी भी बोलते हैं, तो ऊपर वाले को हम पल्मनरी सर्कुलेशन भी बोलेंगे. और हार्ट टू बॉडी ऑर्गन एंड बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, ये भी एक साइकिल है, इसको हम सिस्टमिक बोलते हैं. सो इस पर भी क्वेश्चन आता है, इस पर 4 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन आता है. इसकी लेंदी राइटिंग होती है, राइट? सो यहाँ पे सिर्फ 1 मार्कर है, 1 ईच, तो हमने उस हिसाब से 1 लाइन में, और 1 लाइन है ना तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है कि आप उसको प्रिसाइजली लिखकर कैसे कीवर्ड्स को, सारे के सारे कीवर्ड्स आप आंसर में फिट कर, राइट? एंड टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द क्वेश्चन. अब ये जो क्वेश्चन है, this question has come in one of my physical students paper, and this question is there from 20 for the 2026 sample paper जो CBSE ने लॉन्च किया है बायोलॉजी सेक्शन में से. अब उस बच्चे से प्रॉब्लम क्या हो गई? सेम प्रॉब्लम जो मैंने पीछे आपसे डिस्कस की थी कि एक्सप्लेन देख के, द चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट, उससे देख के प्रॉब्लम क्या हो गई कि एक्सप्लेन देख के उसको लगा कि आई हैव टू डू द डिटेलिंग पार्ट, राइट? तो अब उसने क्वेश्चन हैज कम फॉर 2 मार्क्स ओनली. अब उसकी वजह से कि आई न्यू एवरीथिंग, शी वोंट बी एबल टू फिगर आउट कि मुझे कितना लिखना है और कैसे इसको केटर करना है. अब अगर मैकेनिज्म ऑफ वाटर देखें तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट. यू कैन टॉक अबाउट रूट जाइलम, यू कैन टॉक अबाउट स्टेम जाइलम, यू कैन टॉक अबाउट लीफ जाइलम, बट डू वी एक्चुअली नीड ऑल दिस इन 2 मार्कर? नो.
अगर हमारे पास लेंदी राइटिंग आती है तब हम उसको देखेंगे, बट यहाँ पे तो हमें मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं। तो मैकेनिज्म में आप कीवर्ड्स यूज करेंगे, आप प्रोसेसेस बताएंगे, आप पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व है वो बताएंगे, और कौन कौन सी प्रोसेसेस हेल्प कर रही हैं। Right, children. So I have divided this in 4 points, which are sufficient to help you get full 2 marks for the question. अब वाटर पॉइंटर्स में लिखना बहुत जरूरी है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स। अब इसमें आप ये भी लिख सकते हो थ्रू द कैपिलरी एक्शन एंड एक्स वाई जेड, बट इतनी नीड नहीं है, हम उसको थोड़ा और प्रिसाइज कर लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस हमने बता दिया। तो फर्स्ट सेंटेंस में से, फर्स्ट पॉइंट में से आपको 2 कीवर्ड्स आपने अंडरलाइन कर दिए। अब इट मूव्स फ्रॉम सेल टू सेल एंड रीचेस द जाइलम वेसल्स। हमने इसमें से रूट जाइलम, शूट जाइलम, स्टेम जाइलम, लीव जाइलम सब हटा दिया। हमने ऑल टुगेदर एक कलेक्टिव टर्म यूज कर ली जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम वेसल। अब वाटर राइजेस अपवर्ड इन द जाइलम। वाटर क्या करता है, अपवर्ड राइज करता है। अब वो क्यों कर रहा है, 2-4 चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। अब उसके लिए रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है जो ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से हुआ। केपिलरी एक्शन, केपिलरी एक्शन का क्या मतलब होता है, जिन बच्चों को नहीं पता, दैट इज अ सेल्फ सकिंग एक्शन, right? If you put that tube, capillary tube, over the surface of the water, it absorbs or sucks the water on its own. And cohesion and adhesion forces, अगर आप कोहेशन और अडेशन फोर्सेस की बात कर रहे हैं, जो कोहेशन फोर्स होता है बच्चा, लेट मी एक्सप्लेन यू एक रफ डायग्राम के साथ। जैसे हमारा जाइलम वेसल है, तो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स रिच इन मिनरल्स। अब ये जो फोर्स है ये इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो अब ये सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये कोहेसिव फोर्स से अटैच्ड है, राइट? सो जब एक को पुल आता है ऊपर से, क्योंकि ऊपर तो लीफी रीजन है और लीफी रीजन इज एक्सपोज टू द सन, और यहाँ पे क्या हो रही है, भर भर के ट्रांसपिरेशन, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रही है, मींस इवेपोरेशन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीव्स। तो जब सर्फेस ऑफ द लीव से इवेपोरेशन हो रहा है तो व्हाट विल हैपन, नीचे की साइड और ऊपर की साइड देयर इज डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, सो दैट इज लीडिंग टू ऑस्मोसिस। नीचे क्या है, हमेशा द वाटर इज रिच, and that means in the roots, and on the topmost part of the plants, that means on the surface of the leaves, there is always a scarcity of water, so there is a root pressure which is created due to this water concentration difference। अब उसकी वजह से एक ट्रांसपिरेशनल पुल होता है। अब पुल के साथ साथ वो कोहेशन और एडेशन क्या होता है, जाइलम वेसल के वॉल्स के साथ ये वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टिक होते हैं। अब ये स्टिकनेस जो है वो किस वजह से आ रही है, वो एडेशन की वजह से आ रही है, और जो फोर्स विद इन वाटर मॉलिक्यूल्स लग रहा है उसे कोहेशन बोल रहे हैं। तो हमने सबको बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया, हमने वर्ड्स यूज कर दिए, कैपिलरी एक्शन, कोहेशन एंड एडेशन फोर्सेस। सो वाटर को अपलिफ्ट किया जा रहा है, अब उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। कैपिलरी एक्शन जो रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं, दैट शोज द कैपिलरी एक्शन, बट ये बताने की नीड नहीं है कि रूट हेयर्स के थ्रू हो रहा है, कोहेशन किस में हो रहा है, या एडेशन कैसे हो रहा है, ये भी बताने की नीड नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स का यूज करो। जितने ज्यादा, आपकी लैंग्वेज में बोल रहे हो, जितने ज्यादा प्रो हो जाओगे कीवर्ड्स में उतने अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। चीजें टफ नहीं है, बट यू मस्ट लर्न हाउ टू हैंडल देम स्मार्टली। द मेन फोर्स विच इज देयर, जो यहां से लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल, एंड विच इज क्रिएटेड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीव्स। तो आपने सब चीजें बता दी, ट्रांसपिरेशनल पुल बताना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से रूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है, राइट? रूट हेयर्स में कैपिलरी एक्शन हो रहा है, और विद इन द वाटर मॉलिक्यूल्स कोहेशन हो रहा है, विद इन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ द जाइलम वेसल एडेसिव फोर्स लग रहा है। सो दीज ऑल थिंग्स आर गोना हेल्प यू, राइट, इन राइटिंग द प्रिसाइज आंसर। क्या हमें इसमें डायग्राम बनाने की नीड है? एब्सोल्युटली नॉट। 2 मार्क्स बेचारा टीचर कहाँ कहाँ डिवाइड करेगा, जस्ट राइट द पॉइंट्स, बी प्रिसाइज विद द कीवर्ड्स एंड गो अहेड विद योर आंसर राइटिंग, राइट? So here, children, I have state the events that occurring most frequently asked question। अगर टीचर का मन कर गया कि वो फोटोसिंथेसिस में से क्वेश्चन पूछे, तो 10th graders, this is the obvious question।
फोटोसिंथेसिस में से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेट द इवेंट्स। अब 2 मार्क्स में दिया है और 2 पार्ट्स भी बना दिए, तो क्या हम इसमें रिएक्शन लिख कर आए? नहीं लिख कर आओ, नीड ही नहीं है। Is it essential that these steps takes place one after the other immediately? अब ये भी समझते हैं। अब इवेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला एब्जॉर्प्शन, ये एज इट इज एनसीईआरटी में गिवन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? केमिकल एनर्जी में, और वाटर को स्प्लिट कर देगी किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। स्टेप नंबर 2, बी प्रिसाइज। नाउ रिडक्शन ऑफ CO2। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? CO2 को रिड्यूस कर देगा और क्या बनाना शुरू कर देगा? कार्बोहाइड्रेट्स बनाना शुरू कर देगा। राइट चिल्ड्रन? अब डू दे अकर इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर? नो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन वो ATP और NADPH है, जो लेटर ऑन यूज किए जा सकते हैं। NADPH का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो हाइड्रोजन होता है, जो फर्दर हेल्प करता है रिडक्शन में। ATPs आर द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। तो जो जब ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये लेटर ऑन हेल्प करते हैं टू परफॉर्म द डार्क रिएक्शन, विच इंडिकेट्स दैट फोटोसिंथेसिस, even though the rate is superly low, but photosynthesis also takes place during night time. So ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्टेप्स वन आफ्टर दी अदर हो। सो उन्होंने क्या किया? ये क्वेश्चन को अप्लाइड कर दिया, राइट उसमें से उन्होंने कॉन्सेप्ट डिराइव करके आपसे पूछ लिया। तो अब जब भी पेपर बनेगा कॉन्सेप्ट ड्रिवन बनेगा, एंड दे वांट द स्टूडेंट्स टू यूज देयर ब्रेन। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन विद अस। टचिंग द हॉट फ्लेम इज अ डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। ठीक है, one way is to think concisely about the possibility of burning and then remove our hand from it. But our body has designed in such a way that we save ourselves from such situations. अब वो कह रहा है कि अगर आप एक हॉट फ्लेम को टच करते हो, ये एक डेंजरस सिचुएशन है। अब वन वे इज टू थिंक कंसाइजली अबाउट द पॉसिबिलिटी कि हाथ जल जाएगा, और देन वी हैव रिमूव द हैंड फ्रॉम इट। बट हमारा बॉडी इस तरह से डिजाइन है कि हम अपने आप को सेव कर लेते हैं इमीडिएटली। व्हाई? बिकॉज एज सुन एज वी टच समथिंग हॉट वी जस्ट पुल आवर हैंड अवे, सो दैट इवन टेक द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फॉर आवर बॉडी टू डू सो। अब नेम, ये आपको सिचुएशन दे दिया है। This is a situation based question, again an applied question. Name and briefly explain the response by which we can protect ourselves in the situation mentioned above. अब वो कह रहा है नाम बताओ और briefly explain करो the response by which we can protect ourselves. So what is this action known as in which our body is responding without even thinking? Such a response is known as reflex action. आपने बहुत, अब बच्चे क्या करते हैं? एक वर्ड reflex action. No, at least create a sentence. And by which आप एक्सप्लेन भी करो उस रिस्पॉन्स को। सो रिफ्लेक्स एक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। अब आप इसके कीवर्ड्स यूज करेंगे। ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, क्विकली जनरेटेड रिस्पॉन्स है, और ये एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है टू अ स्टिमुलस like touching of a flame. अब जो किसमें हेल्प कर रहा है? which help us to protect ourselves without waiting for conscious thought. अब कॉन्शियस थॉट क्या होता है? जैसे कि मम्मा पूछ रही है आपसे यू वांट टू हैव फूड और नॉट, सो आप कॉन्शियसली सोचोगे कि एम आई हंग्री और नॉट, वेदर आई एम विलिंग टू ईट और नॉट, सो दैट इज नोन एज कॉन्शियस थॉट। अब एक अनकॉन्शियस थॉट क्या होता है? कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया विदाउट इन्वॉल्विंग योर ब्रेन, योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट. So such kind of action is known as reflex action, which help us to save from any external harmful stimulus. Right, children? अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है? What is the role of motor and relay neurons in the above case? अब इस ऊपर वाले केस में मोटर न्यूरॉन क्या कर रही है और रिले न्यूरॉन क्या कर रही है? तो डायरेक्टली उन्होंने मीनिंग नहीं पूछा, उन्होंने उस सिचुएशन से कनेक्ट करके पूछा। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि जब आप इसको लिखें तो आप इस सिचुएशन से कनेक्ट करके लिखें। तो मोटर न्यूरॉन क्या कर रही है? वो कैरी करती है कमांड को फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स। अब मोटर न्यूरॉन ने स्पाइनल कॉर्ड से कमांड लिया और मसल्स को, मसल ऑफ द आर्म एंड विच कॉन्ट्रैक्ट्स, ड्यू टू विच वी पुल आवर हैंड अवे, causing our hand to withdraw. Right, children? Relay क्या कर रहा है? Relay sensory,
जितने भी हमारी बॉडी के थर्मो रिसेप्टर्स थे वो एक्टिव हो गए। एक्टिव हो गए मतलब सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, वो सिग्नल रिसीव कर लिया, connect the sensory neurons to the motor neurons within the spinal cord which help to pass the message quickly. So relay neuron क्या करते हैं, सेंसरी और मोटर को कनेक्ट कर देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, जितने भी मैसेजेस होते हैं वो क्विकली पास हो जाते हैं। अंडरस्टूड। अगर मैसेज ही नहीं जाएगा तो प्रोसेस नहीं होगा, इंटरप्रेट नहीं होगा और उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। राइट चिल्ड्रन? So with this, we can write the answer. Now, this is from the board, last year board paper. Question is very simple, right? Explain with the help of flow chart बना के बताओ कि that in human being's father is responsible for the sex of the child. अब ये क्वेश्चन मैंने अपने एग्जाम साइकिल टेस्ट में दिया था, बट स्टूडेंट्स दे एंड अप राइटिंग द लेम आंसर्स, समटाइम्स सम स्टूडेंट्स, व्हाई? बिकॉज उनको कॉन्सेप्ट पता है, उनको नॉलेज है, बट वेयर दे आर लैकिंग, दे आर लैकिंग इन आर्टिकुलेटिंग इट, कि उसको ठीक से लिखना कैसे है। अब ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ह्यूमन बींग के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 46 ऑल टुगेदर। अब out of these 23, 22 pairs are autosomes and one pair is sex chromosome, that is X or Y, that decides the gender or the sex of the child. Mother always provides the X chromosome. Father can provide both. तो अब आप यहाँ पे क्लियर कर रहे हो कि मदर के पास जो पॉसिबिलिटी है, मदर तो हमेशा एक्स ही देगी, बट फादर कैन गिव एक्स और वाई क्रोमोसोम। इफ फादर प्रोवाइड्स एक्स, द फीमेल से कहा क्या है, एक्स ही आएगा, तो एक्स एक्स विल मेक फीमेल चाइल्ड। इफ फादर इज प्रोवाइडिंग वाई, द चाइल्ड विल बी मेल कैरिंग एक्स वाई क्रोमोसोम। सो इस तरीके से आप आर्टिकुलेट करके अच्छे से प्रूव करते हो और अपनी बात को क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करके आते हो। देयरफॉर फादर डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। अब आपको जो फ्लो चार्ट बनाना है उसमें आप एक्स एक्स जायगोट बताएंगे जो गर्ल चाइल्ड का होता है और एक्स वाई जो मेल चाइल्ड का होता है। मदर एग विल प्रोवाइड एक्स एक्स एंड द फादर विल प्रोवाइड एक्स वाई। सो यू नीड टू शो द क्रॉस। क्रॉस के लिए हमेशा याद रखेंगे 1 to 1, 2 to 2, राइट? 1 to 1, 2 to 2. So genes always work in pair. तो हमेशा हम पेयरिंग में लिखते हैं, that is XX and XY. All right, children. So this question is from heredity and evolution. उसमें से हमेशा एक क्रॉस आता है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। Now this is the last question of the session today. Explain what will happen. What will happen if xylem tissue of the plant is removed? तो ये क्वेश्चन 3 मार्कर में आया था, ठीक है। अब उन्होंने 3 पार्ट्स बना दिए। तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे राइटिंग के क्वेश्चंस नहीं है बच्चा, चाहे वो 2 मार्कर हो चाहे वो 3 मार्कर हो, वो हमेशा डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो जाइलम टिश्यू इन अ प्लांट इज रिमूव्ड। अब बताओ कि क्या होगा अगर जाइलम टिश्यू प्लांट में रिमूव कर दो। तो जब भी रिमूवल होता है, स्पॉइलेज होता है, तो आप हमेशा बेसिक पर जाओ। बेसिक का मतलब कि जाइलम टिश्यू का फंक्शन क्या है। अगर आप जाइलम टिश्यू रिमूव कर दोगे तो दैट मीन्स जो काम जाइलम टिश्यू कर रहा है वो काम नहीं होगा, राइट? तो बच्चे एकदम से पजल हो जाते हैं कि क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया गया। जब पहले क्वेश्चन बनते थे तो वो ऐसे बनते थे कि इसका फंक्शन बताओ, उसका फंक्शन बताओ, उसका रोल बताओ, उसका जॉब बताओ, हर इस टाइप के क्वेश्चन बनते थे। बट अब क्वेश्चन को घुमा दिया गया है कि अगर जाइलम टिश्यू नहीं है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ऑब्वियसली से सपोज आज मम्मा घर पे नहीं है तो क्या होगा, खाना नहीं बनेगा, वो हाउस क्लीनिंग में डिफिकल्टी आ जाएगी, सो द होल हाउस विल गो हेवायर। सिमिलरली जब प्लांट्स में जाइलम टिश्यू चला जाएगा तो जो जो काम जाइलम टिश्यू कर रहा है वो सारे के सारे काम नहीं होंगे। तो जाइलम टिश्यू क्या करता है, हमें पता है कि जाइलम टिश्यू का मेजर काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो वो नहीं होगा। So water and minerals cannot move from roots to the other parts of the plant. Plants will wilt, may die ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। विल्टिंग का क्या मतलब होता है कि प्लांट्स जो हैं आपके ड्राई होना स्टार्ट हो गए हैं और उसकी वजह से क्यों ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि वाटर ही अपलिफ्ट नहीं हो रहा है। सो द वाटर विल नॉट बी एबल टू रीच टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वाया रूट्स। तो
If they will not get the water, they will not be able to perform the photosynthesis, तो wilting होना start हो जाएगी, which may also cause the death of the plant, right? Second part क्या है? What will happen if all the green plants will disappear from the earth? अब जो producers होते हैं, जो plants होते हैं, वो first trophic level होते हैं. अब ये तो बहुत crucial है कि base ही चला गया. So plants अगर disappear हो जाएंगे, सबसे पहली चीज कि फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा. फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी. तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं, ह्यूमंस हैं, कार्निवोर्स हैं, दे विल इवेंचुअली डाई बिकॉज ऑफ टू थिंग्स जो मेंशन करना जरूरी है. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन. वेरी सिंपल. नाउ इफ द सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स डेवलप अ लीक, थर्ड पार्ट कि ब्लड वेसल में लीकेज हो गई. अब ब्लड वेसल्स क्या कर रहे हैं? ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना टू द हार्ट, टू द लंग्स, टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सो अब ब्लड में लीकेज है तो दैट मीन्स ब्लड उस लीकेज से बाहर आएगा. तो जिस प्रेशर से ब्लड जा रहा होगा वो प्रेशर ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा. सो ब्लड विल एस्केप फ्रॉम द वेसल. फर्स्ट पॉइंट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दैट इज व्हाई आई पुट अ एरो ओवर इट. ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है इनटू द वेसल. अब ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है तो ऑर्गन्स तक efficient amount of oxygen नहीं पहुंच पा रहा. It is not getting enough oxygen. Why? Because the speed of the blood reduces multifold due to that leakage. So when the blood won't be able to reach all the cells, तो वहां तक oxygen नहीं पहुंच रही, वहां तक nutrients नहीं पहुंच रहे, and that can also be proved for to be life threatening. So children, with this I'm going to end up today's session. I hope this session is going to help you a lot. If this session really helped you, I want a feedback from all of you, those who will be watching this video, that will you get any help, or did you like it, and have you understood that how to articulate the answers, and this is really going to help you out in your